Okay, so we are being recorded now. We're live. Okay. So should we begin, Ali? Yes. Bismillah. Let me just go. Okay. Assalamu alaikum, and thank you for joining us as we learn and reflect and hopefully act on another very important topic, which is the impact of domestic violence on victims and the community. Most people think that domestic violence is a private family matter and choose not to get involved. However, domestic violence impacts the community in surprising ways. Domestic violence tears the very fabric of a community by dismantling family units and causing a ripple effect of repercussions that are felt for many years. One of the most important lasting consequences of domestic violence is the harm it does to family bonds. Children witnessing violence committed against their parents can find it difficult to trust adults in the future. It compromises their attachment to the person that should love and protect them, weakening the family unit. An estimated 3.3 million children are exposed to violence against their mother or a female caretaker. These children, can have health issues as adults, like anxiety, sleep disorders, mental health, and behavioral health issues. Here are some facts on domestic violence. Domestic violence is a pattern of behavior used to establish power and control over another person through fear and intimidation. Domestic violence can happen to anyone, regardless of gender, race, ethnicity, sexual orientation, income, or other factors. Every 9 seconds in the US, a woman is assaulted or beaten. In 1 to 4, women will experience domestic violence during her lifetime. Domestic violence is the third leading cause of homelessness among families. 7 million children live in families in which severe partner violence occurred. More than 3 million children witness domestic violence in their homes every year. Domestic violence costs more than $37 billion a year in law enforcement involvement, legal work, medical and mental health treatment, and lost productivity at companies. On a typical day, there are more than 20,000 phone calls placed to domestic violence hotline nationwide. Domestic victimization is correlated with a higher rate of depression and suicidal behavior. To talk further on this, we are honored to have Ms. Roshaneh Zafar and Dr. Rafia Hamid. Ms. Roshaneh Zafar is a pioneer in the development sector with an experience of over 30 years. She is the only Pakistani woman to have established the country's first specialized microfinance institution, Kasha Foundation, that works towards empowering women, entrepreneurs. Ms. Zafar also serves on the board of several prestigious institutions, including Pakistan Medical Commission, Kinnaid College, Finca Microfinance Bank, the Micro Insurance Network, the Pakistan Microfinance Network, and Karwan Crafts. Her contribution to the development field has been recognized internationally and nationally. In 2010, she won the Vital Voices Award for Economic Empowerment, and in 2007, the Skoll Award for Social Entrepreneurship. In 2005, Ms. Zafar was awarded the Tamgha Imtiaz, one of Pakistan's highest civilian awards, by the President of Pakistan for her work to empower women from low-income households. In addition, she was selected as a social entrepreneur in 2004 by the Schwab Foundation, a sister entity to the World Economic Forum. Ms. Zafar has also previously worked with the World Bank and has served as a member of the Prime Minister's Task Force on Austerity and Federal Government Restructuring. She is a graduate of the Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA, and holds a master's degree in development economics from Yale University, USA. Now, a little bit about Dr. Rafia Hamid.
Dr. Rafia Hamid is a New York State licensed psychologist. She completed her doctoral studies in clinical psychology from Adelphi University and training from Kings County Hospital Center, Personal Counseling Center at Brooklyn College, and Albert Einstein College of Medicine. Dr. Hamid has also taught many psychology courses and supervised trainees in several master level and doctoral programs in clinical psychology, psychotherapy. Currently, Dr. Hamid works on a inpatient child psychiatric unit and has a private practice in Long Island. She also specializes in neuropsychological evaluation of school-age children. Currently serving as one of the board members, Dr. Hamid started as a volunteer member of Domestic Harmony Foundation in 2004. While completing her doctoral studies, her research interests include bicultural identity, acculturation, marriage patterns, and domestic violence within the minority immigrant communities. Her dissertation addressed culturization dissonance between parents and college-age children of South Asian origin and its impact on their psychological well-being. Dr. Hamid has authored several articles, book, chapters, and made numerous presentations at local and national conferences on domestic violence, as well as mental health needs of families from diverse backgrounds. Just put it on the file. Thank you for joining us today, Ms. Roshaneh Zafar and Dr. Rafia Hamid. Over to you both. We'll start with Ms. Roshaneh Zafar. हमें थोड़ा सा रोशाने अपने बारे में बताएं और बताएं कि आप क्या काम कर रही हैं. Thank you, Nazia. First, it's a pleasure to be on the panel today, and I'm really looking forward to what Dr. Hamid has to say on domestic violence. I think one of the first things that stands out is the statistics you mentioned. इन्हीं statistics और अदादो शुमार को अगर हम पाकिस्तान पर अप्लाई करें तो कहा जाता है कि 85% ख़वातीन पाकिस्तान में जो हैं वो किसी ना किसी तरह हरासा हुई हैं या तशद्दुद का उनको सामना करना. तो ये स्टेटिस्टिक को जब हम सामने रखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि हर घर में किसी फॉर्म में वायलेंस है. आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशनल से लेकर फिजिकल वायलेंस. So you have some form of violence that women face in households, and a lot of it is tied to the economy. आपने बात की कि जब वायलेंस की बात आती है, तशद्दुद की बात आती है औरतों पर, तो उसमें पावर की एक गेम होती है और उसी से मुंसलिक पिदरशाही निज़ाम है जिसको हम पेट्रियार्की कहते हैं अंग्रेजी में, कि जब मर्द अपने आप को समझता है कि वो बरतर है या माशरा ऐसे उसको प्रोजेक्ट करता है कि वो ही औरतों का जो है देखभाल करने वाला है या फैसला करने वाला है, तो इस सोच को जब हम बहुत आगे लेकर जाते हैं तो वायलेंस उसमें नॉर्मलाइज हो जाता है, बिकॉज औरत को एक कमोडिटी के तौर पे देखा जाता है. वो या तो किसी की बहन है या बीवी है या बेटी है. ये नहीं देखा जाता कि उसकी अपनी शख्सियत जो है या उसके अपने जो ख्वाब हैं वो क्या हैं. तो अगर पाकिस्तान को सामने रखा जाए तो अगर आप मेरी बात करती हैं तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर मुझे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा. कभी भी मेरे 3 भाई हैं और मैं हूँ, एंड आई एम द यंगेस्ट. सो माय पेरेंट्स ऑलवेज बिलीव्ड कि लड़कियों को भी वही मौके मिलने चाहिए जो मर्दों को मिलते हैं. तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने ख़ानदान में डिस्क्रिमिनेशन का कभी सामना नहीं किया. लेकिन जब मैंने प्रोफेशन में आई और मुझे मौका मिला पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करने का और मैंने औरतों की कहानियाँ सुनी, और मैं पूरे पाकिस्तान में खा तुर्बत की बात करें बलूचिस्तान में या मीरपुर की बात करें आज़ाद कश्मीर में या बन्नू की बात करें KPK में या थरपाकर की बात करें सिंध में, मैंने ये तमाम जगहों में जाकर औरतों से बात की और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जिस औरत से मैं बात करती थी वो मुझे यही कहती थी कि क्या तुम समझती हो हमारे ख्वाब मुख्तलिफ हैं तुमसे. Don't we have the same aspirations as you? We also dream for better life for our families and our children. So the problem is, if I had money in my hand, if I had economic agency, I would make better decisions, and my decisions would be to invest in my family. So this question always stayed with me, and being an economist, I started studying the way resources, especially economic resources, are from a perspective of access to finance. In the Pakistani setup, I started studying that, and I realized that not even 2% of the loans are provided to women to start businesses.
And if we talk about gender equity across the world, there was a research that was done by the IMF and the World Bank, which showed that if you can equalize women's participation in the economy, अगर आप मर्दों और औरतों को एक मयार पर ले आए जब इक्तिसादी सूरत हाल की बात आती है, तो उधर you can actually enhance your GDP growth by over 7 to 8% automatically. So countries like Pakistan, investing in women's economy is smart economy. And that's really the question I had. How can I use that data and help women set up businesses and help women economize on the skills that they have? And as luck would have it, वो कई बार कहते हैं ना कि सितारे जो हैं वो गर्दिश में होते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. मैं इस खोज में थी, इस सोच में थी कि कैसे ख़वातीन के लिए कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम किया जाए. तो मेरी मुलाकात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से हुई, जिन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया था बांग्लादेश में, और उन्होंने मुझे ये बताया कि माइक्रो फाइनेंस की एक तरीकाकार है जिसमें हम ख़वातीन की एंटरप्रेन्योरशिप पे इन्वेस्ट करते हैं. आप देखें, जब आप एक खातून को सरमाया देते हैं तो उसके पीछे और बहुत कुछ करना पड़ता है. सबसे पहले तो उसकी इज़्ज़त नफ्स को जो है मजबूत करना पड़ता है, फिर उसके ख़ानदान को जो है आमादा करना पड़ता है कि वो इजाज़त दें या सपोर्ट करें ख़वातीन को काम करने के लिए. एंड देन ऑफ कोर्स बहुत से और हर्डल्स होते हैं, मार्केट जाना, मार्केट से प्रोडक्ट्स लेना, बेचना, नेगोशिएट करना. तो हमें उन तमाम चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत थी. तो ग्रामीण में मैंने ये सब कुछ सीखा. आई वेंट टू बांग्लादेश, आई लेफ्ट माई जॉब एट द वर्ल्ड बैंक, and I decided that I wanted to set up something similar in Pakistan. And that was my journey in 1996. I then came back from Bangladesh, and Dr. Yunus supported us and gave me a loan for the organization. And that's how we started. And today we've helped over 3.5 million women entrepreneurs across Pakistan set up businesses. And we'll talk about the impact in a bit, but just to share my story. Thank you very much, Roshaneh. Dr. Rafia, go ahead, please. तो जो है मैं अपने बारे में इतना बताऊंगी कि मैं यहाँ अमेरिका जब आई थी, I came here in 1991, and I was like, I think I went through the same thing. वही जो है हमारा जो पैटर्न चलता है कि आप पहले फैमिली एस्टैब्लिश करते हैं, and then I was keen to study. तो और जो है मैंने फिर एडमिशन लिया अपने डॉक्टरल प्रोग्राम में, और उसमें आई गॉट एक्सपोज टू वुमेन. जो है कुछ ख़वातीन थी, जो साउथ एशियन वुमेन थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही थी. और मैं जितना भी जब साउथ एशियन और मुस्लिम वुमेन के बारे में रिसर्च के लिए जो कुछ भी एक्सप्लोर करती थी, तो ज़्यादातर जो चीज़ अटेंशन पे आती थी वो थी डोमेस्टिक वायलेंस. और उसी पे ज़्यादा काम हो रहा था. एक साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन साखी जो है वो मैनहट्टन में इस्टेब्लिश हो चुकी थी उस वक्त, और वो लोग काफ़ी सारा काम कर रहे थे. और उसमें जो है चूँकि इमिग्रेंट वुमेन होती हैं तो बहुत सारे उनके डिफरेंट किस्म के मसाइल होते हैं. बहुत सारी जो हैं वो अपने हस्बैंड पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं. अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो फिर जो अब्यूज़ जो डेमोन्स्ट्रेट होता है वो इन लॉ अब्यूज़ भी काफ़ी उसमें शामिल हो जाता है. और इसके अलावा कोअर्शन जो है दूसरे तरीके से बढ़ती है. जैसे कि जब इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं तो उन्होंने ये देखा है कि औरतें जो हैं वो अकल्चरेट ज़्यादा इजीली होती हैं अमेरिकन कल्चर में, क्योंकि उनको फ्रीडम की होप होती है कि हाँ थोड़े से हमारे लिए एवेन्यूज़ खुलेंगे और हम जो हैं we'll be able to attain something, या हमारे बच्चों के लिए हम कुछ कर सकेंगे. और यहाँ की सोसाइटी भी ऐसी है कि you have to get out and you have to do a lot of things on your own. आपको घर के काम भी खुद करने हैं, आपको जो अपने बच्चों को भी लेके स्कूल जाना है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिम्मेदारियां हैं जो ऑटोमेटिकली पड़ती हैं. लेकिन जो है मर्द जो होते हैं ना वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं. ये स्टडीज हैव शोन दैट मेन दे थिंक दैट दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर सोशल ऑर्डर. और चूंकि यहाँ आके वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बढ़ती है तो कुछ, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये ब्लैंकेटेड स्टेटमेंट है, बट इट हैपेंस कि एज अ डिफेंस जो है बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारे एल्डर्स जो हैं वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं. तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स जो है कंपाउंड हो जाती हैं. फिर ये होता है कि तो जब मैंने वो सब कुछ देखा और पढ़ना शुरू किया और स्टडी करना शुरू किया तो ऑब्वियसली फिर मुझे वॉलंटियर करने की भी अपॉर्चुनिटी मिली. और जो है यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड में, एक्चुअली इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड में बहुत सारी जो है फिजिशियंस थी
जो है जो साइकाइट्रिस्ट भी थी, फैमिली फिजिशियंस थी, दूसरी स्पेशलिटीज थी, उन्होंने ये देखा कि हमारी कम्युनिटी में भी, इवन दो इट वाज अ रिलेटिवली एफ्लुएंट कम्युनिटी, ठीक है, काफ़ी खुशहाल लोग थे, प्रोफेशनल औरतें थीं, और इसके बावजूद इन पढ़े लिखे लोगों में भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे. और फिर जो है अगर कोई औरत सप्रेस है, बहुत ज़्यादा जो है उस पर इमोशनल अब्यूज़ भी चल रहा है, इवन फिजिकल अब्यूज़ भी चल रहा है, और वो आके अगर मस्जिद के इमाम साहब से कहती हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, तो अक्सर उनको ये कहा जाता था कि एंड इट्स कॉमन ऑल अक्रॉस कि जी आप सब्र करें, आप जाके जो है नमाज पढ़ें, आप इबादत करें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे. लेकिन ऑब्वियसली जब आप यू आर इन डेंजर, और जब अब्यूज्ड वुमन जो है, जब वो औरत बाहर निकलती है हेल्प के लिए, उस वक्त जो है उसके लिए ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वो अपनी अब्यूज़ जो है लोगों से शेयर करना शुरू करती है. आई मीन जो ज़्यादातर जो मर्डर के भी जो केसेस होते हैं उस टाइम पे होते हैं जब औरत कोशिश करती है कि वो बाहर निकल के हेल्प ले. तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिवनेस वहाँ पे भी जो है देखी गई. एंड ऑब्वियसली मैं जिस ज़माने में डोमेस्टिक हार्मनी फाउंडेशन स्टैब्लिश हुई थी, आई वाज नॉट इन्वॉल्व विद दैट. मैं काफ़ी अर्से बाद उसमें आई, व्हेन आई वाज डूइंग माय डॉक्टरल स्टडीज़. लेकिन मुझे बहुत सारे मेंटर्स मिले वहाँ पे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने काफ़ी सिखाया. और हुआ ये कि जो है कमेटी ग्रास रूट्स एफर्ट्स की वजह से स्टैब्लिश हुई है कि जो लोकली जो लोग थे वो इन्वॉल्व है, एंड नॉन फिजिशियंस गॉट इन्वॉल्व टू, और जो औरतें हाउसवाइफ्स थी वो इन्वॉल्व रही. और जैसे अगर किसी के पास ग्रोसरी नहीं है, उसको जाके जो है वो सामान पहुंचा रहे हैं, किसी के बच्चों के लिए हेल्प कर रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं. और फिर जो है इन लोगों ने जो है ट्रेनिंग्स लेना शुरू की, डोमेस्टिक वायलेंस एडवोकेसी की ट्रेनिंग्स लेना शुरू की कि यहाँ पे लीगल क्या वो है, रेमिफिकेशंस हैं, और क्या बैरियर्स भी हैं, कि जो है इमिग्रेंट वुमेन के जो मसाइल को वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. और जो उसके जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं उनका क्या, कि अगर वो जो है इंग्लिश में बात नहीं कर रही, तो इवन नाउ अभी टू दिस डे उसके जो इश्यूज हैं वो कोर्ट में मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं बिकॉज शी इज नॉट एबल टू एडवोकेट फॉर हरसेल्फ. इस तरह से पुलिसिंग, वैसे ही जो इमिग्रेंट कम्युनिटी लॉट ऑफ टाइम्स दे आर अफ्रेड ऑफ पुलिस, क्योंकि बैक होम उन्होंने जो है वो जो पुलिस की जो दहशत देखी है उनसे वो बड़ा डरते हैं. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, तो इसमें फिर आई ऑल्सो लर्न कि आपकी मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, आपकी ग्रास रूट्स एफर्ट है, और आपको कम्युनिटी आउटरीच करनी है, अपनी कम्युनिटी को चेंज करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, और आपको जो एल्डर्स हैं कम्युनिटी के, आपके जो फॉर एग्जाम्पल क्लर्जी हैं, आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, आपके वो लोग हैं जो सब दे आर इन पोजिशंस ऑफ पावर. जैसे आपकी मस्जिद की भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट जस्ट वन प्लेस, राइट, यू हैव टू स्प्रेड आउट. तो आप किस तरह से जो है उन सब स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करें और उनको कन्विंस करें कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू. तो वो जो है दैट इज लाइक आई थिंक ग्रास रूट्स एफर्ट्स, जो औरतें जो छोटे छोटे पैमाने पे जिन्होंने काम शुरू किया, और फिर उन्होंने ये देखा कि मर्दों में भी उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए. और जब शुरू में हम रिक्वेस्ट करते थे इमाम साहब से कि आप खुतबा दें डोमेस्टिक वायलेंस पे, और शुरू में जो है वो चीज़ दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर इवेंचुअली इट स्टार्टेड टू हैपन. लेकिन ये है कि जब हम एज वॉलंटियर्स, जब हम दूसरी जगहों पे जाके प्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने दूसरे कम्युनिटी सेंटर्स, अदर मस्जिद्स, ठीक है, वहाँ पे जाके तो अब भी बहुत सारी मसाजिद हैं जो हमें परमिशन नहीं देती हैं कि हम जाके प्रेजेंट करें. और इवन दो हम सिर्फ बेसिक लाइक फॉर एग्जांपल इस्लामिक राइट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, एंड दे डोंट अलाउ अस टू गो, क्योंकि उनको ये डर है कि पता नहीं हम आके उनको क्या बता देंगे. एंड दीज आर ऑल बेस्ड ऑन इस्लामिक रूल्स. फॉर एग्जांपल अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी है तो वो एक चीज़ है. दूसरा ये है कि यहाँ पे अब जब ये डोमेस्टिक हार्मनी कमेटी बनी, इवेंचुअली इट बिकेम इट्स ओन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी इंडिपेंडेंट है. इट्स अ वेरी वेल रिगार्डेड ऑर्गेनाइजेशन. और जो हम लोकली भी हम जो है जो हमारी डोमेस्टिक वायलेशन कोalition है न्यूयॉर्क स्टेट की है, नासा काउंटी, सफोक काउंटी, अगर सिटी से कोई केस आता है तो सब हमारा कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन होता है. तो वेरी नाइसली लिंक्ड, बहुत अच्छी तरह से हमारे कनेक्शंस बने हुए हैं कि अगर कहीं लॉ इन्फोर्समेंट का इशू आ जाता है तो हम पुलिस, I mean there have been trainings that have been provided, cultural sensitivity training, पुलिस ऑफिशियल्स को प्रोवाइड किया जाता है, and they are very receptive to us. लीगली जो है जो अगर किसी को
कोई केस फाइल करना होता है, कोई औरत है उसको डिपोर्टेशन करने का डर है, तो फिर बिकॉज इफ अ मैन फाइल्स फॉर हर इमिग्रेशन और उसकी कंडीशनल स्टेटस है तो उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए. तो ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो इमिग्रेंट वुमेन फेस करती हैं, और ऑब्वियसली यू हैव टू यूज अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, कि आप उन सारी चीज़ों को जिस हद तक भी उसको एड्रेस कर सकते हैं आप करें. Najib Bhabhi, you're muted. Okay, you're muted. I'm sorry. We'll start. Thank you very much, Rafia. We'll start with the question and answers now. Roshaneh, sabse pehle aapse, can you please give us a little bit of introduction about Kasha Foundation? जी, like I was mentioning, मैंने जब काम शुरू किया तो मेरा फोकस ये था कि औरतों को इक्तिसादी तौर पे कैसे मजबूत किया जाए. तो उनके लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करना वाज नॉट रॉकेट साइंस. दैट वाज नॉट द इशू. द इशू वाज रियली कि हम जब एक खातून को देखते हैं उसके माशरे के अंदर, तो उसको क्या क्या रुकावटों का सामना करना है. और वो सिर्फ जो रुकावटों का सामना उसको करना पड़ता है वो माली नहीं होती, फाइनेंशियल नहीं होती या इकोनॉमिक नहीं होती. उसके पीछे बहुत सी समाजी रुकावटें भी हैं जो आती हैं जब एक औरत इस ठान लेती है कि उसने कारोबार शुरू करना. तो वक्त के साथ साथ हमने रियलाइज़ किया कि जब तक हम उनकी फैमिलीज़ को एजुकेट नहीं करेंगे, एक तो है कि आप एंटरप्रेन्योर जिसको फंड कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी को एनहांस करें. तो हमने फाइनेंशियल एजुकेशन की ट्रेनिंग स्टार्ट की ताकि वो सही तरीके से पैसे का इस्तेमाल कर सके, कारोबार चला सके और कारोबार को बढ़ा सके. लेकिन हमें रियलाइज़ हुआ वक्त के साथ कि ये भी काफ़ी नहीं, क्योंकि जब उसके फैसला साजी करने का टाइम आता था, जब वो पैसे कमाती थी तो उसकी इकोनॉमिक एजेंसी नहीं थी. वो ये नहीं फैसला कर पाती थी कि जो मैं कमा रही हूँ उसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ. तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ज़रूरी है कि मर्दों से भी बात की जाए. और इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर राफिया ने ये बात की कि यू हैव टू बिल्ड अ होलिस्टिक अप्रोच. तो हमारी भी, हम इसको कहते हैं वैल्यू चेन फॉर वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप इन पाकिस्तान. एंड द आइडिया इज दैट यू कांट जस्ट गिव मनी एंड से ओके यू रन योर बिजनेस, but you will have to draw circles around it. It's like peeling an onion. आप एक प्याज लेते हैं और जब उसको छीलना शुरू करते हैं तो उसकी कई लेयर्स हैं जो निकलती हैं. तो इसी तरह जब आप एक औरत को एक उसके समाज के अंदर देखते हैं तो बहुत सी लेयर्स निकलती हैं. सो हमें फिर सेकंड स्टेप ये किया कि हमने उनके मर्दों को घरों में उनको जेंडर ट्रेनिंग्स और जेंडर राइट्स के ऊपर ट्रेनिंग देना शुरू की ताकि वो समझ पाएँ कि जो औरत कमाती है उसका क्या वैल्यू है. एंड नॉट ओनली दैट, वो अनपेड केयर जो काम करती है, जो समझा जाता है कि औरत का काम है कि जी उसने ही खाना पकाना है, उसने ही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, उसने ही बर्तन धोने हैं, उसने ही कपड़े धोने एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इसको अकाउंट फॉर ही नहीं किया जाता. और फिर नॉट ओनली दैट, वो फिर जो कोई बीमार होता है घर में तो उसका भी ख्याल रखती है और कारोबार भी चलाती है. सो वी नीडेड टू क्रिएट पैरिटी, जेंडर एक्विटी के ऊपर फिर हमने काम करना शुरू किया. हमें ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मर्दों के साथ बात करना काफ़ी नहीं था, बल्कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में, एंड आई एम श्योर वो बात कर रही थी डॉक्टर राफिया के, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है और वो इमिग्रेंट कम्युनिटी में भी आपको नजर आएगा, खा आप यूके चले जाएं या यूएसए चले जाएं. मदर इन लॉ का बहुत होता है रोल, बहुत बड़ा किरदार होता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो फैसलों को, खा वो कितने बच्चे पैदा करने या बच्चों की एजुकेशन या तालीम करनी. तो वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम फॉर मदर इन लॉ ट्रेनिंग to help them become aware of how they needed to be supportive for their daughter. Then we realized that wasn't enough either, क्योंकि जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, एक कम्युनिटी की भी एनवायरनमेंट है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है. तो हमने थिएटर का इस्तेमाल किया. पाकिस्तान में और बरे सगीर में रवायती तौर पर थिएटर बहुत आम होता था. टेलीविज़न से पहले अगर आप तारीख उठाएं तो आपको पता लगेगा कि स्ट्रीट थिएटर जिसको कहा जाता था वो कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा होता था. तो हमने उसी को रिवाइव किया और हम थिएटर का इस्तेमाल करते हैं. मसलन कम उम्री की शादी, पाकिस्तान में इस वक्त 30% शादियां जो हैं वो 15 साल की उम्र से कम होती है. एंड आई एम श्योर द डॉक्टर्स हु आर लिसनिंग टू दिस वुड अंडरस्टैंड दैट दिस नॉट ओनली हैज साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इश्यूज फॉर द लिटिल गर्ल, यू स्टील हर चाइल्डहुड, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फिजिकल जिसे कहते हैं जिस्मानी इश्यूज क्रिएट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से. तो और बहुत सी बच्चियां जचगी में मर भी जाती हैं इसकी वजह से. और पाकिस्तान का इस वक्त मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत हाई है और इसका एक फैक्टर कम उम्र की शादी है. तो हम ऐसे टॉपिक्स उठाते हैं जो ख़वातीन को इम्पैक्ट करते हैं, खा बच्ची की एजुकेशन हो जाए
या औरतों का कारोबार हो जाए, या औरत का आमदोरफ्त के ज़रायों का इस्तेमाल करना. इस वक्त अगर आप देखें एक बहुत अहम वजह है कि पाकिस्तान में औरतें पीछे रह रही हैं. वो आगे आ रही हैं, तालीम याफ्ता हो रही हैं, लेकिन वो जॉब मार्केट में नहीं आ रही, और उसकी एक वजह जो है वो आमदोरफ्त के ज़राए ना होने. तो हमने कश में एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसको हम कहते हैं वुमेन ऑन व्हील्स. हमारे इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो कश में काम करती हैं, जिन्होंने स्कूटीज़ ख़रीदी हैं और मोटर बाइक्स ख़रीदी हैं, और वो मोटर बाइक्स का इस्तेमाल करती हैं. सो यू हैव टू रोल मॉडल. सो व्हाट वी रियलाइज दैट समटाइम्स यू हैव टू शेक सोसाइटी एंड यू हैव टू शो पॉजिटिव रोल मॉडल्स. तो हमने थिएटर का इस्तेमाल किया इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए. लेकिन फिर एक अबाउट 8 years ago वी स्टार्टेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. कर्ज हमारा फाइनेंशियल प्रोग्राम तो चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, वी हेल्प्ड ओवर 3.5 million women with loans to help them set up businesses. But we realized that to advocate change, you have to use media, and media is a very very strong tool. So हमने ड्रामा सीरियल्स बनाना शुरू किए, और इसका मकसद यही है कि लोगों की जहनियत को बदला जाए. I hope if you haven't watched our latest drama serial, please do. It's on sex trafficking and it's called दिल ना उम्मीद तो नहीं. वो अभी हाल में ख़त्म हुआ है, PTV पे चल रहा था और TV1 पे चल रहा था, YouTube पे है, प्लीज़ देखिएगा. आपने उडारी का नाम भी सुना होगा. That was also our serial. We produced it, and it's a serial that was talking about child sexual abuse, which is something that people don't talk about, had not talked about in Pakistan before. So हम ड्रामा सीरियल्स इसीलिए बना रहे हैं, और हमने एक मेंटल हेल्थ फॉर वुमेन के ऊपर भी सीरियल बनाया था, आखिरी स्टेशन के नाम से. So the idea behind these serials is really to change the mindset, because even if women start their businesses, even if they start earning, a lot of times they don't have control over that. And just since the topic today is domestic violence, एक बड़ा interesting statistic हमने over the years collect किया है, because हम impact assessments करते हैं अपने clients की, कि इसके बाद जब औरत कमाती है तो उसके अंदर change क्या आता है, और इर्द गिर्द के फैमिली के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर, इंटर स्पाउसल रिलेशनशिप जो मर्द और औरतों की रिश्ता है मियाँ और बीवी का, उसमें क्या चेंज आता है. तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ये नजर आई. हमें बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया माइक्रो फाइनेंस को, कि माइक्रो फाइनेंस तशद्दुद जो है औरतों के ऊपर उसको बढ़ाता है, क्योंकि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं on repaying of the loans. But to the contrary, what we've seen is that when a woman earns, domestic fights go down, and domestic fights are the trigger that lead to domestic violence in low-income households. That's what we've seen. So what we actually saw is that in 40% of the cases, men and women, because we interviewed the women and their husbands, हमने शोहरों से भी बात की और अपने क्लाइंट से भी बात की जो खवातीन हैं, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जी 40% ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है हमारे फैमिली में कम हो गया है. जब औरत कमा रही है तो वो मुझसे पैसे नहीं मांग रही, इसलिए अब वो अपनी बचत खुद कर रही है और उसके पास पैसा आ गया, so she can make her own decisions. The other impact that we saw, and that's very interesting, is the impact on children. So what we saw is the moment the woman earns, she's 3 times more likely to send her child to school. So what we started seeing was that the intergenerational change was taking place. Women who were earning, who were running their businesses, उनके घर में अमन भी ज़्यादा था, खुशहाल भी वो हो रहे थे, और वो अपने बच्चों को भी जो है स्कूल डालने में ज़्यादा आगे. So these are some of the things that we did see, and our experience says that when men and women earn together, there's a transformation that happens in the interspousal relationship as well. Thank you very much, Roshaneh. Dr. Rafia, को एक हमें सवाल आया है कि लोग कहते हैं कि ये तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये तो एक प्राइवेट मैटर है, हस्बैंड एंड वाइफ की जो लड़ाई होती है, इज इट दैट और इज इट सीन, और ये उससे बढ़ के कोई चीज है? देखिए, अगर ये कहा जाता है, और इवन यहाँ यूएस में भी जो है डोमेस्टिक वायलेंस को अप टू मे बी 70s प्राइवेट मैटर ही समझा जाता था, टू द एक्सटेंट कि यहाँ पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर नहीं था. तो जो फर्स्ट डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर जो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है वो 1970 में हुआ है. तो यू कैन इमेजिन कि उससे पहले जो ये चीज़ थी हशश थी, बिल्कुल जैसे यू हैव टू सफ़र इन साइलेंस, कि आपको अपनी डर्टी लॉन्ड्री एयर नहीं करनी, कि आपको अपने जो फैमिली के मसाइल हैं वो बताना नहीं है. लेकिन उसका जो कॉस्ट है जब आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं करते, तो जैसे रोशाने भी बता रही थी कि उसके कितने ज़्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और जब आप उसको एड्रेस करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस होती है, तो उसका रेमिफिकेशंस पूरी सोसाइटी पे पड़ता है.
तो जहाँ पे आप अगर ये कहते हैं कि ये प्राइवेट मैटर है, लेकिन यहाँ पे फिर क्रिमिनल जैसे इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं कि अगर किसी को मारा पीटा जा रहा है वो अपने घर के अंदर सेफ नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पे जब बाद में लॉज इम्प्लीमेंट हुए तो उन्होंने इस चीज़ पे एम्फसाइज किया कि अगर हस्बैंड ने अब्यूज़ किया है उस औरत को, उसको मारा पीटा है, तो उसको उस घर में रहने की फिर इजाज़त नहीं होती इफ इट गोज टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और उसको प्रिजन हो जाती है, उसको जेल हो जाती है। तो इमोशनल अब्यूज़ का है कि वो बैटरिंग का, उसमें भी उसको हो सकती है जेल 1 साल की, लेकिन अगर उसने जो है फिजिकली अब्यूज़ किया है तो उसमें उसको 4 साल तक या इवन ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे उस चीज़ को सीरियसनेस इसलिए लिया कि वो एक मर्द और औरत के बीच में नहीं रहता कि औरत ही सफ़र कर रही है, पूरी जो है फैमिली और पूरी कम्युनिटी सफ़र करती है। इट कीप्स योर सोसाइटी बैकवर्ड्स इन द सेंस कि जो अब ज़ाहिर है अगर घर में बच्चे हैं तो उन पे भी बहुत ज़्यादा असरात आते हैं, और इतने ज़्यादा आते हैं कि बच्चे साइकोलॉजिकली आइदर दे बिकम नम या वो एक्टिंग आउट करना शुरू करते हैं, और द डिफरेंट इम्प्लीकेशंस के किस एज में बच्चे ने विटनेस किया है। एंड अगर बंद कमरे के पीछे भी होता है तो भी बच्चों को पता लग जाता है, बट चिल्ड्रन नो, और वो सम दे सफर साइलेंटली। तो जो है लड़कियां लॉट ऑफ टाइम्स जो है स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि वो जो है खामोशी से सफ़र करती हैं, बट इट अफेक्ट्स देयर सेल्फ एस्टीम, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी जो है एजुकेशनल जो उनकी अटेनमेंट है कि वो स्कूल में कैसा कर रहे हैं, अकम्पलिशमेंट्स उनकी सही जा रही है नहीं जा रही, एवरीथिंग इज इम्पैक्टेड। और लड़कों का भी ये है कि आइदर उनके सेल्फ एस्टीम पे अफेक्ट पड़ता है, और वो दे इंटरनलाइज द पेन, या फिर दे स्टार्ट एक्टिंग आउट, और उसकी वजह से जो है वो बात नहीं मानेंगे, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएंगे। एंड देन अ लॉट ऑफ बॉयज लर्न टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टू अदर वुमेन, क्योंकि उन्होंने वही जो है चीज़ देखी है अपने घर के अंदर। तो जब उनके रोल मॉडल्स ही पॉजिटिव नहीं हैं जिनसे उन्होंने सीखना है, और ये बड़ा अनकॉन्शियसली आता है, ये सर बैठ के सिखाया नहीं जाता, जो आप देखते हैं वो आप करते हैं। तो कुछ मदर्स हमारे पास आई हैं जब हम सर्विसेज के लिए, एंड उनका 9 साल का बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा, उनको निकाल रहा है कमरे से, बैठ के अपनी जो है फिल्म्स देख रहा है जो नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यंग किड्स, के छोटे बच्चों को देखने भी नहीं चाहिए, और वो मदर को बिल्कुल आउट करे इसलिए कि दिस इज हाउ ही सॉ हिज फादर डूइंग। तो इस वजह से इट इज़ नॉट अ प्राइवेट मैटर, इट अफेक्ट्स द होल सोसाइटी। एंड इसी वजह से जो है डोमेस्टिक वायलेंस का भी जो मॉडर्न अप्रोच है वो कहते हैं इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एन एंटी वायलेंस अप्रोच, कि जिस सोसाइटी में वायलेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस भी ज़्यादा है। तो जब आप सोसाइटी एज अ होल सोसाइटी में भी आप देखेंगे कि यू वांट टू रिड्यूस द वायलेंस, तो आपके डोमेस्टिक वायलेंस के उस पे भी असरात आएंगे, और इट कैन बी इम्पैक्टफुल। तो इस वजह से दिस इज नॉट अ प्राइवेट मैटर टू मी, बिकॉज इट डज अफेक्ट पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करती है ये चीज़। थैंक यू। रोशानी, कश्यप फाउंडेशन विमेन को कैसे एम्पावर करता है? जी नाजी, ऑलरेडी इस पे मैंने काफ़ी बात की है दैट वन ऑफ द प्राइमरी टूल्स दैट वी यूज is helping women set up business, and the idea behind that is for them to contribute to family income where financial resources are extremely sparse. So अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पहला स्टेप तो यही है कि वो कमाना शुरू करती है, और हमने ये देखा है कि जब एक औरत कमाती है तो सबसे पहले उसका इज्जत नफ्स जो है वो बहाल होता है। So our studies tell us, मैंने आपको एक स्टैटिस्टिक दिया था कि 85% of women in Pakistan have faced some form of violence, whether it is from verbal abuse to whether it is to physical abuse. So the range is wide. However, many women have faced it. But what we see, the moment a woman begins to earn and she realizes that she can contribute to the family, she starts to respect herself more. और वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो पहला, जैसे डॉक्टर राफिया ने भी कहा, that is the first step to self-actualization in terms of realizing your self-worth. तो उसके अंदर जब वो, what our data tells us that over 80% of women say that after earning for 1 year and after running a business and seeing all the challenges and being able to overcome them, 80% of women say that we are more self-confident. What we also see is that a majority of women tell us that they're able to save. Now that's a very interesting dynamic. आप एक कम आमदनी घराने की जब बात करते हैं तो दे आर अर्निंग बिटवीन $2 to $3 or maybe $5 a day. That's the range.
मैं अक्सर औकात जब टॉक्स देती हूँ तो मैं ऑडियंस से ये सवाल करती हूँ, unfortunately there's not an audience here, that if I gave you $3 to survive on the day, which includes everything, you have to take care of all your livelihood and your life needs, would you be able to survive? And usually the answer I get from the majority of the audience is कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं कर सकता. But it's the woman who manages the budget. And I always say that if we had women managing Pakistan's economy, we would be really doing much better than most countries in our region. But of course, don't hold me up to that. That being said, तो हमने ये देखा है कि वो खातून जो है वो अगर 100 रुपया कमाती है तो वो 30 रुपए बचाएगी. मर्द उसके बरक्स जब कमाता है, अगर उसके हाथ में पैसा जाता है तो वो 20 रुपए अपनी पॉकेट में रखेगा और 80 रुपए जो है वो खर्च देगा. So what's happening is that women tend to be thrifty. They're thinking, अच्छा अगर something goes wrong, for example बारिशें ज़्यादा हो गई, छत गिर गया, तो मेरे पास हाथ में पैसे होने चाहिए कि मैं अपना छत रिपेयर कर सकूं. So what we see is that once the woman starts saving, she can make decisions not just for today, but for the longer term. And then I also mentioned to you that what we also see is that the dynamic begins to change. Her husband also begins to respect her more. And again, I'm going to give you a very crude example. We asked the men, we said, आपने क्यों अपनी बीवी को मारना बंद कर दिया? क्योंकि ये याद रखें कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की सोफिस्टिकेशन की डॉक्टर राफिया बात कर रही है, वो कम आमदनी के घरानों में नहीं होता. There's no privacy. People live in one-room houses, and there's 7 people. If you look at Pakistan's housing statistics, there's 7 people living in the same room, including the mother, the father, and the 5 children. So there is no privacy on anything. So ये चीज़ें हो रही होती हैं, बच्चे भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं देखकर कि ये मेरी माँ को कैसा ट्रीट किया जा रहा है, और everybody talks about this very openly. They won't hide it. So we asked the men, and we said कि जी आपने अपनी बीवी को पीटना फिर क्यों बंद कर दिया? You know the answer we got? He said, well, if I beat her, I'm going to lose the 1,000 rupees she brings for the house today. So the economic cost of domestic violence begins to go up. And that is the truth. I mean, if you look at it, that was the very hard truth that we saw. The dynamic was changing. You know, you beat your wife, you don't get the money that day. So that was one of the drivers, in addition to the fact that the women themselves were feeling more self-confident, and the message they were giving to their spouses was very different from the approach that you see in our drama serials कि जी औरत तो victim है, वो तो बेचारी है, उसको चपेट लगाओगे तो उसको बर्दाश्त करनी. जबकि जब एक औरत कमाना शुरू करती है तो उसको रियलाइज होता है कि उसको चपेट खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो और तरीके से अपने लिए नेगोशिएट कर सकती है. So, you know, that is the other transformation we began to see. And then there's another very interesting dynamic. What we started seeing was that many of our clients' daughters started applying to Kasha for jobs. So there was a transformation. These were young girls who grew up watching their women earning. So वही बात जो डॉक्टर राफिया कह रही थी कि you imbibe a lot. आप बहुत subliminally चीज़ें adopt कर लेते हैं और adapt कर लेते हैं. तो हमने ये भी देखा कि वो बच्चियाँ जिनकी माएँ काम कर रही थी, they were more likely to either finish their schools, go on to high school and graduate out of colleges and seek jobs. So that again was a dynamic that we have seen over the past 25 years that we've been working on women's economic empowerment. So it's, you know, you give them a loan to a woman, you actually transform the family, and then you ultimately transform society. So as I was saying to you earlier, there's a downside. They say कि जो जितना gender inequitable world है इस वक्त, और COVID ने बहुत खराब किया इसको. And in fact, domestic violence की बात करें तो COVID की वजह से domestic violence बहुत बढ़ा है. आप अमेरिका की बात करें, आप बरतानिया की बात करें, आप हमारे जैसे ममालिक की बात करें, जब मर्द और औरतें बंद हो गए एक कमरे में बच्चों के साथ, तो उसकी वजह से तशद्दुद का सामना औरतों को बहुत करना पड़ा. Other than losing their jobs, other than dealing with the psychological impact of you know, being at home, all of those things are on the side, but we did see domestic violence rising as a result of COVID, and a lot of women have also lost their jobs and their livelihoods. So there has, what I say is that COVID का impact जो है वो औरतों पे ज़्यादा हुआ है बरक्स मर्दों पे. So this pandemic hasn't been good to women. At the same time, I think women are resilient, and I have a lot of hope. As they say, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो. जबरदस्त. डॉक्टर राफिया, आपको क्या चैलेंजेस मिलते हैं जब आप डोमेस्टिक वायलेंस, स्पेशली विद द इमिग्रेंट कम्युनिटीज में? राइट, तो अब अगेन चूंकि
वायलेंस बड़ा परवेसिव है वैसे. सो जो सबसे जो पहली चीज़ है उसकी अवेयरनेस, और उसमें जो खुद a lot of women are going through that, और उनको जो है they are not characterizing it as domestic violence. So a lot of times जो emotional abuse हो रहा होता है उनके ऊपर, जो उन पे limitations होती हैं, उनकी जो है self esteem को lower किया जा रहा होता है. A lot of times you know that is not being recognized, उसको पहचाना नहीं जाता, और किस तरह से वो उनकी फैमिली को इम्पैक्ट कर रहा है उसको पहचाना नहीं जाता. इसके अलावा अगर आप अबव एंड बियॉन्ड उसके जाएं तो अब जैसे रोशाने भी बात कर रही थी कि इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस के जो अब्यूज किया जाता है उसमें अगर औरत को इकोनॉमिकली लिमिट कर दिया जाए तो उसके भी बड़े सीरियस रेमिफिकेशंस होते हैं. और जो है इसके अलावा अगर इमिग्रेंट वुमेन की बात की जाए तो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि यू नो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे ऐसी भी कम्युनिटीज़ हैं कि बहुत दूर दूर रह रहे हैं. दे लिव इन आइसोलेटेड कम्युनिटीज़. जैसे अगर आप अपने कम्युनिटी सेंटर के करीब नहीं हैं या आप सिटी में नहीं है जहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो बहुत सारे लोग बहुत दूर दराज इलाकों में जाते हैं रहते हैं. तो अगर एज एन एडवोकेट एज अ वॉलंटियर अगर आपको जाना है उनके पास तो 1-1.5 घंटा लगा के आप जाते हैं. एंड वी हैव हैड वॉलंटियर्स हु हैव डन दैट. I mean, it is challenging, लेकिन अगर determination है आपकी कि आपको help करना है किसी को, even if you can take one person to help, तो you know, तो वो challenge है काफी बड़ा. और उसमें भी जैसे secrecy आती है, क्योंकि जब आप जाते हैं किसी के पास in person services provide करने, तो आपने अपने आप को भी खतरे में डाला है. और ऐसे कुछ cases हुए हैं हमारे पास कि जो है आपको as a service provider भी follow किया जा रहा है. Or you know that can be very intimidating because then it comes back to your home कि आप अपने साथ फिर घर में वो इशू ला रहे हैं. इसके अलावा जो है जब वो औरतें so first of all जो है खुद recognize करना कि I am a victim, or and you know although we like to use the word survivor कि नहीं मैं उसको झेल रही हूँ and I'm going to overcome that कि मैं उस पे जो है you know इस चीज़ से बाहर निकल आऊँगी. लेकिन जो है लैंग्वेज बैरियर्स के अलावा कल्चर का कुछ नहीं पता. उनको ये नहीं पता कि कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं. उनको जो है अमेरिकन कल्चर से फॉर एग्जांपल डर लगता है. उनको यूं होता है कि ये लोग जो है यू नो सही नहीं. आई मीन इवन बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को रोकते हैं कि आप जो है अमेरिकन दोस्त ना बनाएं. यू नो उनका कल्चर बुरा है, उनकी पार्टीज में ना जाएं, उनकी बर्थडे पार्टीज में ना जाएं. तो जब आप उस माइंडसेट से आ रहे हैं कि आपको डर लग रहा है कि आप खराब हो जाएंगे अगर आप जो है मेन स्ट्रीम एजेंसी से जाके आपने हेल्प ली है, तो आपके ऊपर वो बुराई आएगी. फिर इसके बाद 9/11 के बाद जो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन आया है, तो उसमें जो है मुस्लिम वुमेन एंड चाहे ऑब्जर्वेंट हो, हिजाब पहनती हो ना पहनती हो, उन पे जो है ये मल्टीपल लेवल्स के जो है बैरियर्स आ गए हैं कि अब उनको डिस्क्रिमिनेट भी किया जा रहा है. एंड अगेन इट्स वेरी अनकॉन्शियस सब्लिमिनल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है कि यूं तो आप सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सबकी हेल्प करेंगे, लेकिन अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि उनके स्कूलों में भी बच्चों को समझा नहीं जा रहा, कि उनकी गाइडेंस काउंसलर्स भी जो है मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, और दे आर क्विक टू ब्लेम द पेरेंट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स. तो डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म वो बहुत बड़ा जो है फैक्टर है यहाँ पे. इसके अलावा पहले भी मैंने मेंशन किया था कि लॉ इन्फोर्समेंट के साथ इन्वॉल्व होने में भी उनको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा. यूएस लीगल सिस्टम से उनको डर लगता है. उनको जैसे एम्बैरेसमेंट का बहुत ज़्यादा होता है कि किसी को पता ना लगे. जो सीक्रेसी जो है, जो लोग चाहते हैं कि जो है उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो लोगों के सामने एक्सपोज ना हो, चाहे कम्युनिटी हो या आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी हैं. बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि लाइक वी रिप्रेजेंट आवर मुस्लिम कम्युनिटीज. तो अगर हमने जाके कहा कि हम पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इसका मतलब है कि हम जो है ये आउटसाइड एजेंसीज हैं, उनके यानी बाहर निकल के हम कह रहे हैं कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं कि दे आर वायलेंट, कि वो जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं अपने घरों के अंदर. तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी आ जाते हैं इन एडिशन टू प्रैक्टिकल बैरियर्स. फिर ये है कि उनकी ऑटोनॉमी नहीं है, उनके पास जो है ट्रांसपोर्टेशन जैसे नहीं है, और वो बहुत बड़ा फैक्टर है. इसके अलावा जो है यू नो सो आई थिंक द कल्चरल फैक्टर्स, और फिर यहाँ पे जो अकल्चरेशन के फैक्टर्स हैं वो सब आ जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. तो उन सब चीज़ों को अगेन अंडरस्टैंड करना और काम करना उस सर्वाइवर के साथ कि वो उस बैरियर से खुद को भी बाहर निकाले और आगे स्टेप्स ले, अपने कदम बढ़ाए कि उसकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होना शुरू हों. Thank you.
Roshaneh, what are the future plans of Kasha Foundation? Nazia, so we will, of course, we will continue with the economic program. So our vision is over the next 3 years to reach out to another 800,000 women and provide them access to our financial services and make them successful businesswomen. We will continue with what we are doing now is more in terms of helping women use internet. Post-COVID, as I was mentioning you, one of the things was that the business model for women entrepreneurs has changed. And we are helping them to use social media, the internet, web-based marketing tools to help them enhance their access to market. So in a way, COVID had a silver lining. It made us more aware on how we could use the internet as a way of enhancing women's reach to markets where they had not, for example, if there was a woman making rallies is quilts, that women make traditionally in Sindh, sitting in Sakhar, how could they market in Karachi? Earlier, it was all physical. But now we've helped many women to actually, if they're sitting in Sakhar, to make Facebook pages, get their products to Karachi. So that is something that we're also doing. And we call that particular training, not letting Corona happen to my business. So the idea is that Corona ने तो हमें पीछे किया, लेकिन हम अब और तरीकों से अपने जो marketing है उसको करेंगे और अपने products को आगे sell करेंगे और अपनी पैदावार बढ़ाएंगे. Then we're also doing a lot of work on livestock. क्योंकि ख़वातीन जो हैं, पाकिस्तान को कहा जाता है कि इस वक्त हमारी एक पूरी मिल्क बेल्ट है जो पंजाब में लाइक मिडिल पंजाब में है, साहिवाल सरगोदा इस बेल्ट में. तो वहाँ पर जो लाइफ स्टॉक का ख्याल रखती हैं और जो प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करती हैं वो ख़वातीन हैं, लेकिन उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता. मैंने आपसे ये शुरू में भी कहा था कि बहुत सा काम औरतें करती हैं लेकिन उसकी उजरत उनको नहीं मिलती, उसकी रिकग्निशन नहीं मिलती, उसका पैसा नहीं मिलता. तो लाइफ स्टॉक इज़ ऑल्सो एन एरिया जिसमें वो काम करती हैं लेकिन उनको उसका वैल्यू नहीं मिलता. वो ना मंडी में जाके बेचती हैं, दूध बेच लेती हैं घर से, और जो गवाली है वो ट्रेडिशनली आता भी है, या अब तो नेस्ले एंड द एंग्रोज ऑफ द वर्ल्ड also buy from the women producers, but they're still not able to negotiate. So we are thinking now of setting up milk cooperatives. India has done a lot of work on this. I'm sure you've heard of Amul Dairy. Right. So we've actually studied that model and we are going to be replicating that inshallah in Pakistan, ताकि ख़वातीन जो हैं वो मुआवनत के साथ और यूनिटी के साथ और ग्रुप्स के साथ, कोऑपरेटिव्स के साथ मिलकर ये काम कर सकें. तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं. लाइफ स्टॉक हमारा एक बहुत अहम शोबा है जिस पे हम काम करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं. एक और शोबा है जिस पे हमने बहुत काम किया है, वो है तालीम का. आप जानती हैं कि पाकिस्तान में कहा जाता है इस वक्त तालीम का फुकदान भी है और एक इमरजेंसी भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन नाइजीरिया है और फिर दूसरे लेवल पे पाकिस्तान है. तकरीबन 20 मिलियन बच्चे हैं और बच्चियाँ, और कोविड ने इसका तहलका मचा दिया. इट्स बिकम इवन वर्स कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों में अब वापस नहीं जा रहे. आई मीन आई हैव अ 9-year-old एंड आई नो हाउ हार्ड इट हैज़ बीन, दो वी हैव द बेस्ट एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग व्हाट हैव यू. शी गोज़ टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन लाहौर, मगर वो मुझे पता है कि वो कितना दर्द सर है. तो आप सोचें एक बच्ची जो या बच्चा जो है जो आम स्कूल में जाता है उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल बात रही है पिछले 1.5 साल से, और अब उसने स्कूल जाना ही नहीं. तो तालीम के शोबे में हमने बहुत काम किया है और इंटरेस्टिंगली इनफ ये भी ख़वातीन का शोबा है, क्योंकि छोटे छोटे गलियों में देहातों में छोटे छोटे स्कूल प्राइवेट लेवल के ख़वातीन ने शुरू किए. इनको हम नाम देते हैं एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर्स, एड्यूप्रेन्योर्स बेसिकली. So we've coined a new phrase for these women who are setting up schools across Pakistan. In fact, 40% of school enrollment in Punjab today in Pakistan is in these small schools that women have set up in different communities. तो हम उनको भी फंड करते हैं. हमारे 4,000-5,000 से ज़्यादा स्कूल थे prior to COVID, लेकिन उनमें से अब बहुत से बंद हो गए हैं, 1,000 रह गए. But we are going to revive that program again and help the schools to come back. Not only that, we also help them to through teacher training, ताकि वो बेहतर तालीम बच्चों तक पहुंचा सकें, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें एक बड़ा ख़ास चीज़ है क्योंकि आज वायलेंस की बात हो रही है. और एक सवाल मैंने देखा था कि जी मर्दों पे तशद्दुद नहीं होता, इज डोमेस्टिक वायलेंस नॉट ऑन मेन. लेट मी फर्स्ट मेक दिस वेरी क्लियर जी, द मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ वायलेंस इन द हाउस आर वुमेन. सो ये कोई मर्द औरत की डिबेट नहीं हो रही, यहाँ पे रियलाइज़ करने की बात हो रही है कि ये बड़ा संगीन मसला है जो औरतों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि पावर किसके हाथ में, मर्द के हाथ में होती है. ये तो केव मैन के, अगर आप पीछे चले जाएं, then there was cave men and we see images of men pulling women by hair into their cave. The fact that men are physically more
structured, better structured or whatever, then physically more powerful than women, women will face that violence. And if society promotes that, then this will be an endemic problem. So I think we have to realize that this is not a male female issue. It's a social issue, as Dr. Rafia also pointed out. It's no longer a private concern. In fact, हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान में आज हम domestic violence की law ले आए. So now this is a crime against the state. And by recognizing that, we've changed our penal code. The good thing in Pakistan that's happened over the past decade is that we've had very good women-specific laws. But the problem becomes with reporting, जो डॉक्टर राफिया ने भी कहा कि ऑनर की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से ये 98% केसेस जो हैं ये रिपोर्ट नहीं होते. जो 2% आते भी हैं और वो मीडिया में आते हैं, वो अमूमन जो है कन्विक्ट नहीं होते. कन्विक्शन रेट्स जो हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, दुनिया भर का इशू है, 5% भी कन्विक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से ये इशू जो है ये बढ़ोतरी लेता है. तो जुडिशियल सिस्टम जो है, जिस पे अभी हमने बात नहीं की थी, वो भी एक वजह है, और उसकी नाअहली कह लें या उसकी inability to actually convict people also creates a problem in terms of propagating this issue, because then the perpetrator feels कि जी मुझे तो कोई पकड़ेगा नहीं और मैं तो जो मर्जी करूँ. So I think this is a very complicated issue. But that being said, coming back to my issue, and I'll just stop after that, कि कश किन शोबों पे काम कर रहा है. तो तालीम में हमने ये देखा कि बच्चों को अवेयर करना उनके हक, उनकी the simple thing that we started doing in these 4,000 schools was training the teachers on first identifying, जैसे डॉक्टर राफिया ने भी कहा, कि कोई बच्चा जो है potentially abuse हो रहा है घर में और क्या वो target हो सकता है abuse का. So helping the teacher identify that, and then also running trainings for children on my body and how to keep it safe. Simple things like good touch, bad touch. ये जब हमने उडारी किया था तो उसके बाद फिर we realized कि it's not enough just to run a television show on this, but it was also important to go out to schools and talk to children. So हमने puppets का इस्तेमाल किया, एक कहानी बनाई जिसमें हमने puppets का इस्तेमाल किया और बच्चों को puppets के ज़रिए सिखाया कि क्या चीज़ें मौजू हैं और क्या चीज़ें मौजू नहीं हैं. अगर आपको कोई छूता है बुरे तरीके से तो आपको क्या करना. सो ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम कंटिन्यू भी करेंगे, और जो हम सिर्फ कर्जा नहीं देते, हम एक्चुअली माइंडसेट चेंज करने पर काम करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम खातून को बिजनेस की सपोर्ट देते हैं तो फिर साथ साथ उसके और भी ट्रेनिंग्स एंड इंटरवेंशंस हैं जो करते हैं, जो उसको हेल्प करती हैं टू सक्सीड, बिकॉज जस्ट गिविंग मनी इज़ नॉट गोइंग टू बी एडेड. So we will be continuing these programs in the coming years, inshallah, and we hope that with all these efforts, the families that we do reach out to, उनकी एक पायदार और वायबल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ सके. So thank you. इंशाल्लाह. डॉक्टर राफिया, ये जो विक्टिम्स और इनके सर्वाइवर्स, इनके लिए क्या सपोर्ट क्या है? क्योंकि मेजॉरिटी तो लोग और खवातीन को ये पता ही नहीं होता है कि वो किधर जा सकती हैं या किससे मदद मांग सकती हैं. Right. तो I think I mean कुछ तो ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो आई थिंक एज अ कम्युनिटी हमें अवेयर होना चाहिए कि अगर आपको कोई आके बताता है, आपकी कोई फ्रेंड है या उसकी कोई जानने वाली है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट अब्यूसिव सिचुएशन एट होम, कि आप उनको कैसे राइट डायरेक्शन पे उनको गाइड कर सकें कि जी यहाँ से आप जाएं, ये हॉटलाइन है, इस नंबर पे कॉल करें और आपको जो हेल्प मिल सकती है. क्योंकि आई थिंक होता क्या है कि समटाइम्स लोग मिनिमाइज करते हैं अब्यूज को, या लोग विक्टिम जो होता है उसी को ब्लेम करते हैं, उसको जजमेंट जो है उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की राय कायम की जाती हैं कि ये तो इसका अपना ही कसूर होगा. तो लोगों की अपनी जो कुछ भी जो इंटरनलाइज जो सोचे हैं वो औरों पे लोग इस तरह से डालते हैं. तो उसके लिए जो है सबसे जो बड़ी चीज़ है जो आई थिंक एज अ कम्युनिटी हमें जो अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, और जो इस चीज़ का जो डिस्कशन है, it should be okay to talk about it. क्योंकि again उस पे भी लोग कहते हैं कि जो औरतें हर वक्त शुरू हो जाती हैं, but the fact of the matter is कि it's very very prevalent, और बड़ा dangerous इसके जो है consequences हो सकते हैं. तो इसके अलावा और आपका फिर जो questions था, जो problems आप पूछ रही थी, right? तो जो barriers जो मैं पहले भी बता रही थी आपको, ये जो है linguistic barriers हैं या दूसरे जो barriers हैं जो आते हैं. But ये है कि in terms of helping them, then I think we can think about that कि उनको किस तरह से help किया जाए. तो और जो है
तो to help them we have to understand कि उनके actual problems क्या हैं, क्योंकि जो every case is a unique case, कि उनके पास वो individual family system में, nuclear family system में रह रहे हैं husband wife और बच्चे, या वो joint family system में रह रहे हैं. Abuse जो है वो किस तरह से perpetuate हो रहा है, किन issues पे हो रहा है. इसके अलावा इस औरत की जो एजेंसी जो रोशा ने भी कह रही थी कि उसकी जो अपनी उस पे जो कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, अब्यूज उस पर बड़ा अफेक्ट करता है. तो उसमें ये है कि पीपल गिव अप, बहुत सारी औरतें वो गिव अप कर देती हैं, और वो या बिकॉज ऑफ दैट जो ट्रॉमा जो उनको लगता है, जिसको मेरा ख्याल है जहनी सदमा भी हम कह सकते हैं, जो काफ़ी डीप होता है, वो इंसान को नम कर देता है. तो उसके लिए फिर जो है आपको साइकोलॉजिकली भी उनकी हेल्प करनी है, आपको जो है काउंसलिंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी है. तो उसमें जो है इंडिविजुअल सपोर्ट, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होती है जो ट्रॉमा को एड्रेस करती है. इसके अलावा जो ग्रुप सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल. और इसी वजह से ज़्यादातर जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस जो एडवोकेसी के लिए काम करती हैं, वो सपोर्ट ग्रुप से बड़ा एम्फसाइज करती हैं, क्योंकि आपको देन यू रियलाइज कि मैं अकेली तन्हा इसमें सफ़र नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे दूसरे लोग भी जो हैं वो इन द सेम बोट. और औरतें एक दूसरे से बड़ा इजीली लर्न करती हैं कि अगर एक जो है किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सक्सेसफुल भी है, क्योंकि अगर जो आपको अगर एम्पावरमेंट के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है कि आप फाइनेंशियली जो है आप कुछ जॉब कर सकें, या आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं, या किसी ने अपनी कार डोनेट की है, तो जो रिलक्टेंस होता है, जो हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है कि जो पता नहीं मैं ये कर सकूंगी या नहीं, आप देखते हैं कि मेरे ही जैसे सिचुएशन में कोई और थी और वो जो है शी वॉज एबल टू डू दैट. तो उस वजह से जो है वो सब फैक्टर्स जो हैं वो बड़े हेल्पफुल रहते हैं. तो इट्स लाइक the way that the problem comes, उस हिसाब से फिर आपको सोचना पड़ता है कि किस तरह से उनकी हेल्प की जाए. मगर जैसे रोशा ने भी बार बार एम्फसाइज करें कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ह्यूज फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मोबिलिटी, एंड देन आपकी सेंस ऑफ एजेंसी कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं अपनी लाइफ जो है वो अपनी सिचुएशन चेंज कर सकती हूँ. Thank you very much. Roshaneh, last question. हमारे members and audience को आप कोई message देना चाहेंगी, and how can we help the Kasha Foundation? I think one of the messages I want to give everyone, and I give this to young people, is that individuals can and do change society. We should never believe कि हमें बहुत बड़ा कोई platform मिले तो ही हम कुछ कर सकते हैं. और जैसे Dr. Rafia भी कह रही थी, and I always give this example. When I was very little, my grandmother used to tell me this story कि एक लड़का था जो समंदर के किनारे खड़ा हुआ था और वो इर्द गिर्द उसके बहुत सी मछलियाँ मर रही थी. So he started picking up one and started throwing that into the ocean. And there was a man further away जो उसको देख रहा था, and he walked up to him and said कि भाई यहाँ तो इतनी मछलियाँ मर रही हैं और तुम एक उठा के फेंक रहे हो, कितनों को बचा लोगे इस दिन में. So the little boy turned around and said to the man that मैं एक को भी बचा लूँ तो मैंने अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो हासिल कर लिया. Right. So we should never think कि हम कोई भी effort अगर करें तो वो काफ़ी नहीं होगा. In fact, I think that is where the journey begins. When I started working, I helped 5 women initially, after going into the field every day and trying to convince women कि जी सरमाया लो, अपना कारोबार शुरू करो. And women would say नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमें तो इजाज़त ही नहीं है, हम तो अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सकते. और आज आप देखें कि तकरीबन 35 लाख ख़वातीन जो हैं उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल किया, कारोबार शुरू किया और अपनी ज़िंदगी. So a journey always begins with the first step. So and you will have occasions where you're going to fall flat on your face, but it's how you get up that matters more than falling down. So that's what I would have to say. And अगर आप हमें help करना चाह रहे हैं जी तो please मेरी colleague है मोमिना अहमद जो कि हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को देखती हैं और लोकल कोलैबोरेशंस को भी देखती हैं. तो उनको आप ईमेल कर सकते हैं. उनका ईमेल है momina.ahmed@kash.org. I'll spell it out, momina.ahmed@kash, which is KASHF.org. So please feel free to write to her, and you can also visit our Facebook page, our website. You can write, contact us through our website as well. So thank you again, Nazia, for your time and for inviting me. Thank you.
Dr. Rafia, same question for you. आप कुछ message देना चाहें और आपकी जो organization है Domestic Harmony, how can we help that organization? Okay, so मेरा यही है, you know, I would piggyback on जो रोशाना ने कहा कि जो है each and every person is important, कि आपने अगर एक person की भी help की तो उसका ripple effect होगा, क्योंकि अगर वो person empowered होगा तो वो पता नहीं और कितने लोगों को उनकी life बदलेगी, उनकी ज़िंदगी बदलेगी. दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि हर शख्स, each and every person is an agent of change. तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ औरतें ही इस काम में involve हो रही हैं. Everybody has to get involved, क्योंकि it's about fairness in society. जो justice है, and I think जितनी भी societies हैं जो, you know, in terms of कि we say कि जी हमारे यहाँ कानून जो है चलता है और हमारे importance है कानून की, या even religions जो हैं उसमें justice का बहुत बड़ा, you know, किरदार रहा है कि justice is very important. इंसाफ बहुत बहुत ज़रूरी है, और हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ पे emphasize किया है और दूसरे faith में भी. तो इसमें जो है जो चीज़ सबसे ज़्यादा important है जो I think कि justice and fairness, उस पे जो है उस अगर perspective से सोचा जाए तो भी ये काम बहुत ज़रूरी है. Compassion और जो है जो रहमो खौफ जो इंसान के दिल में होता है और इंसाफ होता है, तो that is very important कि बच्चा बच्चा, मर्द, औरत, बूढ़ा, जवान, you know, लड़की लड़का कॉलेज में जो हैं, जो स्कूल्स में हैं, शुरू से लेकर जो है इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अ हश हश थिंग. और जहाँ तक डोमेस्टिक हार्मनी फाउंडेशन का ताल्लुक है, तो उनकी जो हेल्पलाइन है पहले उसका मैं बताती हूँ. वो नंबर है 516-385-8292. 516-385-8292. और इसके अलावा उनकी वेबसाइट जो है www.dhfny.org. वहाँ पे जो है आप चाहें आप डोनेट कर सकते हैं वहाँ पे भी, या आप उनकी हेल्पलाइन को भी कॉल करके उनको बता सकते हैं. इसके अलावा जो है हम काफ़ी फंड रेजर्स भी करते हैं. हर किस्म की डोनेशंस जो है एक्सेप्ट की जाती हैं. इसके अलावा आप इफ़ यू कम अक्रॉस एनीबडी आप रेफर भी कर सकते हैं. और सिर्फ यहाँ पे डोमेस्टिक हार्मनी फाउंडेशन ही नहीं है, आप देखें तो हर स्टेट में 2 or 3 वेरी सॉलिड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी साउथ एशियन और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को हेल्प कर रही हैं. टू गेट टू नो अबाउट देम, जैसे हमारे टेक्सास में अन्निसा होम सेंटर है, या सहेली है. इस तरह से आपके जॉर्जिया में भी जो है रक्षा है मेरा ख्याल है. इलिनॉय में अपना घर है, दूसरे so आप यू लुक फॉर इट एंड यू विल फाइंड. तो डोंट फील कि आपको पता नहीं कि किसको किस तरह से हेल्प की जाए. तो एवरी पर्सन एट देयर ओन लेवल, जो भी थोड़ा बहुत हो सके, कीप डूइंग इट. Thank you very much for both of you for coming. हमारी अपनी जो organization है, when we started, it was a handful of women and we were told that we will not amount to anything. And alhamdulillah, जैसा रोशाने ने कहा ना कि एक, and I've heard that story from my parents also, कि एक को भी आप बचा लो या एक की भी जिंदगी बेहतर कर लो, तो that's what it is. And that's what we did, and with Allah's help, we have been able to make an impact on, I think, a few lives. So this was a very heavy topic, definitely. पर आप दोनों से बात करके एक तो सुनने को और बहुत सारी information मिली है. And it's हो गया नबी. It's ending on a positive thing कि हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं. It's not like let's not be कि ये उसका मामला है. At the end of the day, बच्चे, औरतें, we all get impacted by that, and we have to help each other. Thank you very much again. And from my executive committee and from our members, and inshallah we'll stay in touch. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. Have been a Have a pleasure. good afternoon.